जी, definition of base for a topology. What is the definition of base for a topology? Let X2 be a topological space, then a family beta, which is the subset of power set of X. It means all members in beta are the subsets of X. Let X2 be a topological space and a family beta, which is a family of subsets of X, is called base for tau if first condition beta is a subset of tau, means all elements in beta should be open sets, tau open sets. First condition is beta is a subset of tau. It means all members in this family beta should be tau open sets. Second condition is for all x belonging to X and for all neighborhood U of X, there exists a member B from beta such that X belonging to B is contained in U. It means between a point and a neighborhood of that point, there should be a member from that family beta. Second condition is this. If that family satisfies these two conditions, then that family is called base for the topology tau. Is it clear? क्लियर है बेटा ये डेफिनेशन आपकी? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो बेस के मेंबर्स हैं वो आपके ओपन सेट्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशंस क्या है आपकी कि आपका पॉइंट और नेबरहुड के बीच में उस फैमिली का एक मेंबर एग्जिस्ट होना चाहिए. हाँ जी बोलिए. नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस. Let X2 be a usual topological space and beta be the collection of all open intervals. Okay. यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो आपका टाउ है, टाउ के अंदर ओपन इंटरवल्स होंगे, और जो बीटा है वो भी आपकी कलेक्शन होगी किसकी? ऑल ओपन इंटरवल्स की. देन बीटा इज अ बेस फॉर टाउ. तो दैट मीन्स आपने प्रूव करना है इन द केस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टाउ. सो फर्स्ट कंडीशन आपको प्रूव करनी है बीटा इज कंटेन्ड इन टाउ. Since each open interval is an open set in usual topological space, ये हम जानते हैं कि every open interval जो होता है वो usual topological space के अंदर open set होता है, क्योंकि हर एक open interval आपका टो का मेंबर होता है इन केस ऑफ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस. अगर हर एक ओपन इंटरवल आपका टो ओपन सेट है और बीटा के अंदर भी कौन से मेंबर्स गिवन है आपको? बीटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स. तो बीटा के अंदर भी आपके पास ओपन इंटरवल्स हैं. दैट मीन्स अगर आप बीटा से कोई ओपन इंटरवल लेते हो तो वो टो ओपन सेट भी है. इसका मतलब एवरी मेंबर ऑफ बीटा इज अ मेंबर ऑफ टो ऑल्सो. दैट मीन्स बीटा इज कंटेन्ड इन टो. इट इज ट्रीवली ट्रू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बीटा. जो आपको बीटा गिवन कंडीशन है, आपको किसकी फैमिली गिवन है? बीटा. बीटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स एंड वी नो दैट इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस all open intervals is an tau open set also. It means every member of beta is a member of tau also. That means beta is contained in tau. It is satisfied. Now for the next property, let x be a point from X and let U be the neighborhood of that point X. Then there exists delta greater than 0 such that x belonging to x minus delta to x plus delta is contained in U. ये डेफिनेशन किसकी है? नेबरहुड की. बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड आपके पास यू नेबरहुड है एक्स का. देन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, आप डेल्टा भी ले सकते हो. यहाँ पर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल. बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन बिटवीन एक्स एंड यू. And because every open interval is the member of beta, it means x minus epsilon, x plus epsilon, this open interval is also a member of beta. That means we have proved that between the point x and a neighborhood u of x there exists a member of beta. It means beta becomes the base for the topology tau. Is it clear to all? बोलिए बेटा क्लियर है सबको? नेक्स्ट करें. Yes, ma'am. Let X2 be a discrete space. Then the collection beta is equal to collection of all singletons.
it is a collection of all singletons, we have to prove that this collection form a base for discrete topological space. Since x2 is discrete, it is given. It means every subset of x is open because tau is equal to power set of x in the discrete topological space. It means every subset of x is a member of tau. It means every subset of x is open. Therefore, every subset of x is open set. In particular, because every subset of x is open, it means all singletons are also subset of x. Therefore, all singletons are also open set. In particular, singletons are also open set as singletons are also the subset of x. It means singletons belongs to tau. सिंगलटन्स बिलोंग्स टू टो इम्प्लाइज बीटा कंटेनिंग टो, क्योंकि बीटा के अंदर आपके जो मेंबर्स हैं वो आपको क्या गिवन है, सिंगलटन्स गिवन है। और जो सिंगलटन्स है वो टो के भी मेंबर है, क्योंकि जो सिंगलटन्स हैं वो आपके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं एक्स के, और टो के अंदर सारे सबसेट्स आपके अवेलेबल हैं। दैट मीन्स सिंगलटन्स भी टो के अंदर है। इट मीन्स बीटा इज कंटेन इन टो। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, लेट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एंड यू बी एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, देन x belonging to singleton x is contained in U, it is trivially true। x और u के बीच में हम सिंगलटन x को ले सकते हैं, क्योंकि x देखिए x जो है बिलोंग्स टू x, मतलब इसको हमने दो तरीके से लिखा है, x बिलोंगिंग टू x इज कंटेन इन u, इट इज ट्रिवियली ट्रू, एंड सिंगलटन x इज अ मेंबर ऑफ बीटा। It means we have proved that between the point x and the neighborhood u of x there exists a member of beta. It means beta becomes the base for the topology tau. क्लियर है? ये आपको माइंड में रखनी है बात कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर बेस क्या बनता है। बेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन्स। इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ओनली एक्स फॉर्म अ बेस फॉर टो, यानी कि सिर्फ बीटा के अंदर एक ही मेंबर होगा। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर बीटा इज इक्वल टू एक्स फॉर्म अ बेस फॉर टो, क्योंकि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर टो के अंदर दो ही मेंबर होते हैं, फाई एंड एक्स। ठीक है, अब बीटा आपको क्या गिवन है, बीटा के अंदर सिर्फ एक मेंबर आपको गिवन है एक्स, दैट मीन्स बीटा कंटेन इन टो, बीटा सबसेट बन गया टो का। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट लिया आपने, एक नेबरहुड आप लेकर चले हो यू। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट ए टो ओपन सेट ओ सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ओ इज कंटेन्ड इन यू। अब ये देखिए ओ यहाँ पर टो ओपन सेट है, दैट मीन्स ओ टो के अंदर सिर्फ दो मेंबर्स हैं आपके पास, दैट मीन्स देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑन दिस ओपन सेट टू ओ, either o is phi or o is equal to x। when o is equal to phi but o cannot be empty set, because we can say that x belonging to o, here x belonging to o, it means o cannot be empty set, so the only possibility is o is equal to x। when o is equal to x, then putting the value of o here, we get x belonging to x is contained in u, where x is a member of beta। it means we have proved that between the point x and neighborhood u of x there exists a member of beta, and it means beta becomes the base for indiscrete topological space x2। is it clear? क्लियर है बेटा सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, नेक्स्ट Yes, Yes, ma'am. ma'am. खुद पढ़ लेना ये वाला। उसके बाद देखिए, लेट x2 बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन फैमिली बीटा इज कंटेन इन टो इज अ बेस फॉर टो। अब ये थ्योरम्स हैं, अभी आपने ऊपर जो एग्जांपल्स किए हैं उसको हमने जब बेस प्रूव करना था तो हमने डेफिनेशन लगाई थी। बेस की डेफिनेशन में आपने दो कंडीशंस प्रूव की थी। अब कहीं पर जैसे कि लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशंस, लिमिट पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्लोजर्स लगा लो आप, क्लोजर्स की हम डेफिनेशन भी लगा लेते हैं और थ्योरम्स के बेस पर भी हमने स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग दैट सेट। तो इस टाइप से कई बार बेसिस प्रूव करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, कई बार प्रूव करने के लिए हम थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब ये जो थ्योरम है आपकी यहाँ पर कि कोई भी फैमिली बीटा विच इज़ अ सबसेट ऑफ टो इज अ बेस फॉर टो इफ एंड ओनली इफ every टो ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, ये पूरी टोपोलॉजी में नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपका यूज़ होता रहेगा कि कोई भी बीटा कलेक्शन आपकी बेस तब बनती है जब every open set can be expressed as a union of members of beta, and if every two open set can be expressed as a union of members of beta, then beta becomes the base for the topology tau।
So firstly, let us suppose that beta be a base for the topology tau, and we will prove that every tau open set can be expressed as the union of members of beta. So we have taken a capital A be any tau open set. Now we will prove that A is equal to union of members of beta. If A is any tau open set, let us suppose x belonging to A be any point. Then because A is tau open set and x belonging to A and A is tau open, it means A becomes the neighborhood of x. A is the neighborhood of x and beta is a base for tau. It is given. Then by second property of the base, there exists a member of beta between point x and the neighborhood A. So let us suppose that member is bx. सिर्फ x पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए मेंबर हमने b ही लिया है, सिर्फ x को सफिक्स इसलिए दिखाया है ताकि हमें पता हो कि x पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ले रहे हैं हम. Then by definition, by second property of base, there exists a member bx from beta between the point x and the neighborhood A. Is it clear? Now if x belonging to bx, then singleton x is contained in bx. हमने पॉइंट का क्या पॉइंट को सेट में कन्वर्ट कर दिया तो बिलोंग्स टू की जगह क्या आ जाएगी, कंटेनमेंट आ जाएगी. नाउ टेकिंग यूनियन फ्रॉम यूनियन एज x वेरीज ओवर a, यानी कि x बिलोंग्स टू a के लिए हमने यूनियन ले ली यहाँ पर तीनों साइड. तो यूनियन ऑफ सिंगलटन्स x belonging to a is contained in union bx, x belonging to a is contained in union a, x belonging to a. अब ये देखिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सिंगलटन्स की यूनियन है, किसके सिंगलटन्स की यूनियन है, एलिमेंट्स किसके हैं यहाँ पर, ए के एलिमेंट्स है, तो ये पूरी की पूरी यूनियन किसके बराबर हो जाएगी, ए सेट के बराबर हो जाएगी. ऐसे ही जो राइट हैंड साइड में यूनियन ऑफ ए है एक्स बिलोंगिंग टू ए, ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी. सिर्फ आपकी ये मिडल वाली यूनियन रिमेनिंग रहेगी, यूनियन ऑफ बी एक्स एक्स बिलोंगिंग टू ए. इट मीन्स इनको कंबाइन कीजिए, ए इज कंटेन इन यूनियन बी एक्स and union bx is contained in a. It implies a is equal to union bx. It means where bx किसके मेंबर थे आपके पास, bx are the members of beta. It means we have expressed a as the union of members of beta where a is a open set. क्लियर है ये आपको, आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है. Yes, ma'am. Now conversely, let us suppose that every tau open set can be written as the union of members of beta, and we will prove that beta is a base for tau. So first condition हमें already given है कि जो beta है वो contain है tau में, ये हमें already given है. That means there is no need to prove the first condition. So now we move to the second condition. Let x be any point from x and u be any neighborhood of that point x. Then by definition of neighborhood, there exists a tau open set O such that x belonging to O is contained in U. By definition of neighborhood. Now O is a tau open set, and according to given condition, every tau open set can be written as the union of members of beta. It means O is also written as union of members of beta. So let us suppose O is equal to union of B alpha, where alpha belonging to indexing set, where B alpha are the members of beta. According to given condition, O can be written as the union of members of beta. Okay, union of B alphas, where B alphas are the members of beta. Now, putting this value of O in above here, then we have x belonging to union of B alpha is contained in U. Now, if x belonging to that union, it means x belonging to at least one B alpha. If x belonging to union of B alphas, it means x belonging to at least one B alpha. So let us say x belonging to B beta. Okay, that one B alpha can be taken as B beta. So x belonging to B beta. Now x belonging to B beta and B beta is contained in union of all B alphas, which is equal to O, and O is contained in U also. So it means x belonging to B beta is contained in U, where B beta is a member of beta. So second property is satisfied.
कि between any point x and the neighborhood u of x there exists a member b beta which is a member of base beta. Is it clear? Yes, ma'am. देखिए इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो मैं आगे चलती हूँ। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं इसकी स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझाऊंगी क्योंकि इसका प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है। वही देखो यूनियन ली हुई है तीनों साइड, वही सेम चीज़ है। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है। Necessary condition for a family beta is contained in Px to be a base for topology tau on X is equal to union of B, but this condition is not sufficient. देखिए ऊपर वाली थ्योरम में और इस वाली थ्योरम में थोड़ा ही डिफरेंस है। ऊपर वाली थ्योरम में हमने एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा बोला था। एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा वाली जो कंडीशन है वो सिर्फ नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो जो नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ है मीन्स आप बेस लेकर चलोगे और आप एक्स को यूनियन में प्रूव करना है आपको, तो इसका प्रूफ तो बिल्कुल ऊपर वाले एक पार्ट की तरह आपका हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट की तरह। अब जो सफिशिएंट क्यों नहीं है इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, और उसमें एग्जांपल में आपने क्या कहा, एक्स आपने एबीसी सेट लिया 3 मेंबर्स का, बीटा के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए बी और एक ए सी, ये फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। देन यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा निकालिए। यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा आपके पास पूरा एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना था कि कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव करना था कि हमें एक ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जांपल देना था जिसके अंदर x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा तो है पर बीटा बेस नहीं है उस टोपोलॉजी टो का। दैट मीन्स अब हमें प्रूव क्या करना है इस एग्जांपल में, हमने ये तो शो कर दिया कि x कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, बट now we have to prove that this beta is not a base for the topology tau, and for this let us suppose that beta is a base for the topology tau। हम कन्वर्ट उल्टा मान लेते हैं कि बीटा बेस है इस टोपोलॉजी टो का। अगर बीटा बेस है तो दैट मीन्स बीटा इज कंटेन इन टो होगा, पहली कंडीशन। इट मीन्स ये जो बीटा के दोनों मेंबर्स हैं ये दोनों टो में चले गए। टो क्या है, टोपोलॉजी है। अगर ये दोनों मेंबर्स टो में हैं तो टोपोलॉजी की जो आपके पास थर्ड सेकंड कंडीशन होती है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू टो देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो बिलोंग्स टू टो। इट मीन्स ए बी इंटरसेक्शन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू टो। What is the intersection of these two? Singleton A. It means singleton A belonging to tau. It means singleton A is the open set because it belongs to tau. It means singleton A is the open set containing the point A. It means we can say that singleton A is the neighborhood of point A. Now, by using second property of the base beta, there exists, because we have singleton A is the neighborhood of point A, then between the point A and its neighborhood singleton A, there exists a member from beta by definition of base, or suppose that that member is B, BA. So A belonging to BA is contained in A, but which is impossible because there is only two possibilities of this BA. BA is a member of beta. It means either BA is equal to AB or BA is equal to AC. But if we take BA is equal to AB, then AB is contained in A, which is false. And if we take AC, then AC is a subset of singleton A. It is also not true. It means we arrive at a contradiction. Hence, our position is wrong. It means beta is not a base for the topology tau. So, in this example, what we have proved? We have proved that beta is not a base for the topology, but
but X can be represented as the union of members of beta. Is it clear? Yes, ma'am. अब ये भी मैं आपके लिए छोटा सा ये जो रिमार्क है ये भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि अगर एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, बीटा बेस है, अगर बीटा कंटेन है बीटा डैश में, तो बीटा डैश भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इन शॉर्ट वी कैन से दैट सुपर सेट ऑफ बेस इज अगेन ए बेस। ठीक है, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर सेट है बीटा डैश वो भी अगेन क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी टो का बेस बन जाएगा। तो ये आप देख लेना इसका प्रूफ। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन द टर्म्स ऑफ अ बेस। ये बड़ी बार यूज होती है आपकी थ्योरम और इम्पोर्टेंट भी है। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट बीटा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, देन बीटा इज अ बेस फॉर सम टोपो। देखिए ऊपर वाली थ्योरम में थोड़ा सा चेंजेस करके अब ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ में बन गई है। ऊपर वाली थ्योरम में हमने बोला था कि सिर्फ एक कंडीशन, एक पार्ट ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ में ऊपर वाली थ्योरम नहीं थी। दैट मीन्स हमने कहा था कि नेसेसरी कंडीशन तो ट्रू है बट सफिशिएंट कंडीशन इसकी ट्रू नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेम यही थ्योरम है ऊपर वाली भी, लेकिन इफ एंड ओनली इफ तब आएगा जब हमारे पास ये कंडीशन होगी कि फॉर ऑल b1, b2 बिलोंगिंग टू बीटा एंड x बिलोंगिंग टू देयर इंटरसेक्शन देयर एग्जिस्ट another member b3 from beta such that x belonging to b3 is contained in b1 intersection b2। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इस थ्योरम में ये कह रहे हैं कि अगर x को हम बीटा मेंबर्स की यूनियन में लिख रहे हैं तो बीटा बेस बनेगा। ठीक है, देखो ये चीज तो गिवन ही है आपको कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। तो आपने प्रूव क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है कि बीटा बेस बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x बिलोंगिंग टू b3 इज कंटेन्ड इन b1 इंटरसेक्शन b2 वाली, वेयर b1 b2 b3 सारे किसके मेंबर्स हैं, आपके बीटा के मेंबर्स हैं। और अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है x बिलोंगिंग टू b3 इज कंटेन्ड इन b1 इंटरसेक्शन b2 वाली, तब आपका बीटा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और अगर बीटा बेस है तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब ऊपर वाली थ्योरम में दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन कब ट्रू होगी आपकी, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तभी आपकी नेसेसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। समझ आ रही है दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस, आपको पता चल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ये सेम है आपका, बस ऊपर वाली में आपको ये कंडीशन दी नहीं हुई थी, इसलिए सिर्फ एक पार्ट उसका ट्रू था और कन्वर्स पार्ट के लिए हमने काउंटर एग्जांपल दिया था, वो पार्ट आपका ट्रू नहीं था। ठीक है, अब देखिए फर्स्टली लेट अस सपोज दैट बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टो ऑन एक्स। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, firstly let us suppose that beta is a base for the topology tau. Now we have to prove that x belonging to b3 is contained in b1 intersection b2। तो सो हमारे पास क्या है, b1 और b2 दो मेंबर्स हैं बीटा से। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट आपको x ले लिया आपने, x गिवन भी है, ये सारी चीज़ें तो ऊपर गिवन है, फॉर ऑल b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा x बिलोंगिंग टू b1 इंटरसेक्शन b2, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये आपने उठा ली यहाँ से। अब देखिए बीटा इज कंटेन इन टॉ, क्योंकि बीटा आप बेस लेकर चले हो। इफ बीटा इज ए बेस देन बीटा इज द सबसेट ऑफ टो। इफ बीटा इज अ सबसेट ऑफ टो देन b1 b2 which belongs to beta also belongs to टो। b1 b2 टो में भी चले गए। अगर b1 b2 टो में चले गए, टो इज अ टोपोलॉजी, देन बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द टोपोलॉजी देयर इंटरसेक्शन also belongs to टो। it means b1 intersection b2 belongs to टो। now b1 intersection b2 is a टो open set and x belonging to b1 intersection b2, it means b1 intersection b2 becomes the neighborhood of that point x। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया और एक उसका नेबरहुड आ गया, तो हमने बीटा बेस की सेकंड प्रॉपर्टी अब यूज करनी है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेकंड वाली डेफिनेशन ऑफ बीटा, देयर एग्जिस्ट ए मेंबर b3 फ्रॉम बीटा सच दैट between the point x and between the neighborhood
of x means b1 intersection b2, there exists a member b3 from beta। ठीक है, तो यही तो चीज आपने प्रूव करनी थी, यही तो हमने प्रूव करना था कि x बिलोंगिंग टू b3 इज कंटेनिंग b1 इंटरसेक्शन b2, जो आपके पास बीटा बेस की सेकंड प्रॉपर्टी से अपने आप भी प्रूव हो गया है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को ये? चलिए आगे। यस मैम। इसके बाद देखिए अब कन्वर्स पार्ट देखिए। कन्वर्सली लेट द कंडीशन बी गिवन। कौन सी कंडीशन गिवन है? ये वाली b3 वाली, x बिलोंगिंग टू b3 कंटेन इन b1 इंटरसेक्शन b2 फॉर मतलब क्या है, जो सारा पार्ट आपको गिवन है, वेयर b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा, b3 आल्सो बिलोंग्स टू बीटा, x बिलोंगिंग टू b1 इंटरसेक्शन b2, ये कंडीशन आपको सारी गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है? बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टाउ। अब देखिए इस पार्ट में आप क्या करोगे, आपको बीटा को बेस प्रूव करना है टो टोपोलॉजी का। पहले टो तो पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको टो थोड़ी ना गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में टो आपको गिवन नहीं है, टो आपको पता नहीं है कि टो का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हमने टो डिफाइन किया, यहाँ से देखिए, टेक टो इज इक्वल टू all those a contained in x such that a is the union of some members of beta union phi। आपने ये टो ले ली अपनी तरफ से। अब सबसे पहले तो हम टो को टोपोलॉजी प्रूव करेंगे। इज इट क्लियर? पहले मैं स्ट्रक्चर समझाती हूँ आपका। हमने बीटा को बेस बनाना है टोपोलॉजी टो का, लेकिन बीटा बेस कब बनेगा? पहले तो हमें टो के, बीटा के अंदर किसके मेंबर्स होते हैं? टो के ही मेंबर होते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि टो का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम बीटा के बारे में कैसे कुछ प्रूव कर सकते हैं? हमें बीटा का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें कि बीटा के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टो के ऊपर। तो पहले हमें टो का पता लगाना होगा। तो हमने टो कैसे डिफाइन किया कि टो इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। हाँ जी बेटा, ये देखिए, पहले हमें टो का स्ट्रक्चर पता करना होगा। तो टो हमने कैसे लिया? जो अपने ऊपर वाली थ्योरम में किया था ना, एवरी मेंबर ऑफ टो कैन बी रिटन, एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। एक लर्निंग करने का वे बता रही हूँ मैं आपको कि टो के मेंबर्स कैसे आपने याद करने हैं बीटा बेस के केस में, कि एवरी मेंबर ऑफ टो कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। तो इसलिए आपने वही वाले मेंबर्स टो के अंदर ले लिए और फाई को अलग से ले लिया। तो पहले टो को टोपोलॉजी प्रूव कर दिया, ठीक है। टोपोलॉजी बनने के बाद फिर आप क्या करिएगा, ये देखिए आगे, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी, और ये सारी आपकी इंटरसेक्शन वाली चल रही है अभी। यस, टो टोपोलॉजी बन गई आपकी एक्स के ऊपर, ठीक है। टो जैसे ही टोपोलॉजी बन जाएगी तो दैट मीन्स क्या हुआ? एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा हो गया, क्योंकि टो आपने डिफाइन ही ऐसे की है। टो का स्ट्रक्चर आपने कैसा लिया है कि टो के अंदर आपके वही वाले मेंबर्स हैं जिनको आप बीटा की यूनियंस में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो एवरी टो ओपन सेट, जैसे ही टो को टोपोलॉजी बनाओगे तो आप ये वाली बात कह सकते हो कि एवरी टो ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, कौन सी थ्योरम से? अगर एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा है, तो बीटा क्या है आपके पास? बेस बन जाता है। इफ एंड ओनली, ये थ्योरम किया ना हमने ऊपर कि बीटा इज अ बेस इफ एंड ओनली इफ एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, जो पहली वाली थ्योरम थी आपकी। तो उस वाली थ्योरम से अगर टो ओपन सेट को हम बीटा के मेंबर्स की यूनियन में लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब बीटा अपने आप ही क्या बन गया? बेस बन गया। ये कन्वर्स पार्ट का स्ट्रक्चर समझ आया आपको? बोलिए, स्ट्रक्चर समझ आया इसका? कन्वर्सली जो आपने प्रूव करना था, कन्वर्स पार्ट। यस मैम। जो जो ये बीच का पार्ट है, मीन्स जो आपने
टो को टोपोलॉजी प्रूव करना है, उसके अंदर आपको गिवन कंडीशन का यूज करना होगा। गिवन कंडीशन कौन सी थी? x बिलोंगिंग टू B3 इज कंटेन्ड इन B1 इंटरसेक्शन B2 वाली जो आपको गिवन थी। तो उस कंडीशन का यूज अब टो को टोपोलॉजी प्रूव करते हुए बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए फाइव बिलोंग्स टू टो, ये तो फाइव हमने टो में डाला ही हुआ है, तो कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई। अब हमने एक्स को टो में दिखाना है। अब टो के अंदर कौन सा मेंबर जाएगा? टो के अंदर वही वाला मेंबर जाएगा जो यूनियन में एक्सप्रेस किया जाएगा किसके एलिमेंट्स की? बीटा के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अब हमने एक्स को टो में भेजना है, जो टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी होती है कि फाइव और एक्स बिलोंगिंग टू टो। एक्स टो में कब जाएगा? जब हम एक्स को यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ b, b बिलोंग्स टू बीटा, ये तो हमें गिवन ही है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब x किस में चला गया? टो में चला गया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी दोनों। अब थर्ड वाली, दो मेंबर्स टो से लिए, आपने इनके इंटरसेक्शन को भी टो में दिखाना है। तो इनका इंटरसेक्शन टो में कब जाएगा? जब इस इंटरसेक्शन को आप यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा एक्सप्रेस कर दोगे, तो ये इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा? आपका टो में चला जाएगा। तो हम इसको ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा है। A1 इंटरसेक्शन को A2 को आपने टो में दिखाना है। आप एक पॉइंट लेके चले x A1 इंटरसेक्शन A2 से, इसका मतलब x A1 में भी है और x बिलोंग्स टू A2 ऑल्सो। नाउ A1 एंड A2 बोथ आर बिलोंग्स टू टो, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ टो टोपोलॉजी, टोपोलॉजी नहीं बोलेंगे हम इसको, बाय डेफिनेशन ऑफ फैमिली टो। अभी हमारे पास सिर्फ ये फैमिली है, अभी टोपोलॉजी प्रूव नहीं हुई है ये। तो अगर A1 टो में है, इट मीन्स A1 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा। So say A1 is equal to union of B alphas. Similarly, A2 belonging to tau, it means A2 is equal to union of B beta dash. Okay. तो दोनों A1 और A2 जो भी टो के मेंबर्स थे, उनको हमने यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए x belonging to A1 and A1 is equal to union of B alpha, it means x belonging to union of B alpha. If x belonging to that union, it means x belonging to at least one B alpha. That one B alpha we can say B alpha x. ठीक है, कोई भी एक B alpha उठा लिया तो say x belonging to B alpha x. Similarly, यही वाली कंडीशन आप उस पर अप्लाई कर दो A2 वाले पे। x belonging to A2 है और A2 किसके इक्वल है? यूनियन ऑफ B बीटा डैश के। इसका मतलब x किस में चला गया? यूनियन ऑफ B बीटा डैश में चला गया। अगर x यूनियन ऑफ B बीटा डैश में है, इट मीन्स एटलीस्ट वन B बीटा डैश में होगा, और वो वन B बीटा डैश आपने B बीटा डैश x ले लिया, तो इट मीन्स x बिलोंगिंग टू B बीटा डैश x। ओके, अब देखिए, अब जो B अल्फा x था वो सबसेट है A1 का। क्यों है? क्योंकि A1 तो पूरी इनकी यूनियन थी ना। B अल्फा x इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ B अल्फाज। A1 लिख दिया क्योंकि A1 और यूनियन ऑफ B अल्फाज इक्वल थे। सिमिलरली B बीटा डैश x is a subset of union of all B betas. It means taking intersection on both sides. It means B alpha x intersection B beta dash x is contained in A1 intersection A2. अब देखिए, जो x पॉइंट था वो B अल्फा x में भी आपने बोला है, और जो x पॉइंट था वो B बीटा डैश x में भी था। इसका मतलब x इनके इंटरसेक्शन में चला गया, और जो इनका इंटरसेक्शन है, अब x इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। अब जो आपको गिवन कंडीशन क्या दी हुई थी कि अगर ये दोनों मेंबर आपके बीटा से हैं और x पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो एक और मेंबर इनके बीच में बीटा से ही एग्जिस्ट करेगा। सो लेट अस सपोज दैट मेंबर इज bx अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखिए, आपने ये वाला जो मेंबर है आपका b अल्फा x, वो भी आपका बीटा से है। ये जो मेंबर है ये भी बीटा से मेंबर है आपका, ठीक है। और ये जो बी बीटा डैश वाला मेंबर है ये भी आपका बीटा से है। तो ये दोनों मेंबर बीटा से हैं और एक्स इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगा कि एक नया मेंबर, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो हमने नाम दे दिया बी एक्स का।
ठीक है, वो हमने नाम दे दिया बी एक्स का। तो ये जो बी एक्स मेंबर है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इन दोनों की इंटरसेक्शन है वो हमने ऊपर से बोली थी, ये देखिए इन दोनों की इंटरसेक्शन किसका सबसेट है, A1 इंटरसेक्शन A2 का। तो यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या दिखा दिया, x बिलोंगिंग टू बी एक्स इज कंटेन इन A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो फिर अपना x की जगह आपने सिंगलटन x ले लिया, बिलोंग्स टू की जगह कंटेनमेंट आ जाएगी, फिर यूनियन ली। आगे ये खुद रीड करना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप यूनियन लोगे तो इस साइडों वाली जो दोनों इनइक्वालिटी हैं वो A1 इंटरसेक्शन A2 के इक्वल हो जाएंगी, यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 यूनियन में एक्सप्रेस हो जाएगा, तो फिर ये 2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही लास्ट वाली प्रॉपर्टी कर लेना, ये आपकी टोपोलॉजी प्रूव हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, ये आपने रीड आउट करनी है सारी थ्योरम्स जितनी भी मैंने आपको करवाई हैं।